Mindset, personality, and TEF management. Mindset, personality, and TEF management. These are the three topics that I'm discussing today in this lecture. Mindset, personality, and TEF management in the context of competitive exams, especially CSS. Now, we know that every exam needs KSA, but 60% I can say that it is mindset and personality, to which we also call attitude. So the formula of success, one of the formulas of success is KSA: knowledge, skills, and attitude. So today we are discussing the third part, which is attitude. In attitude, we discuss both mindset and personality, and then some managerial management issues as well. So please make a comment that KSA is required for success, and KSA stands for knowledge, skills, and attitude. KSA is required for success, and KSA stands for knowledge, skills, and attitude. So everybody make a comment. KSA is required for KSA is required for success, and KSA stands for knowledge, skills, and attitude. No doubt we need knowledge of all the 12 subjects, then skills of reading, writing, speaking, and listening, and then our attitude. So please make another comment. Indubitably, or undoubtedly, or without doubt, or absolutely, knowledge to cover all the syllabi and past papers, skills of listening, reading, writing, and speaking, and then number 3 is attitude. Attitude is our permanent or constant behavior. Our constant behavior is called attitude. तो आपको नॉलेज भी चाहिए, जितने 12 सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस है, पास्ट पेपर्स है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. Yes, you can say achievements. The result is then achievement. So आपके CSS में या कोई भी मुकाबले का इम्तिहान है तो उसमें कामयाबी के लिए आपका जो फार्मूला है वो क्या है? KSA. ठीक है, नॉलेज. अब नॉलेज क्या है? ऑल द सिलेबाई, जो 12 पेपर है उसका सिलेबस, पास्ट पेपर्स, कम से कम 5 साल के पास्ट पेपर्स, ये नॉलेज है, ये आपके पास होना चाहिए, मस्ट है. इसके बाद आप इसके साथ आपको बहुत बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी पर्सनैलिटी है, तो उसका हमने क्या करना है? आपके पास नॉलेज नहीं है. बड़ा अच्छे इंसान है, इंथ्यूजियास्टिक है, शौकीन है, मोटिवेटेड है, लेकिन नॉलेज नहीं है. सो नंबर 1 इज नॉलेज. नंबर 2 is skills. Skills means reading,
लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ये स्किल्स है, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज कॉन्स्टेंट बिहेवियर। हाउ डू यू बिहेव कॉन्स्टेंटली और यूजुअली, आपका रवैया ओवरऑल जिंदगी में कैसा है। सो दैट रिफ्लेक्ट्स योर mindset and your personality. So, do you have the personality of an officer? If you don't have, so how you can have it? So, look at some officers, how they behave. Officer means the person having authority, जिसके पास कोई अथॉरिटी हो, जो उसके सिग्नेचर में कोई दम हो। ठीक है ना, बड़े सिग्नेचर्स करते हैं, कागज पे 50 सिग्नेचर करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अथॉरिटी मेक्स योर सिग्नेचर पावरफुल। ऑफिसर वो बंदा होता है जिसका सिग्नेचर, उसका दस्तखत चलता है। अब एक क्लर्क है तो गरीब का सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। क्लर्क बेशक सारा काम करता है, अप्रूवल के लिए वो सिग्नेचर वाले को देता है। तो सिग्नेचर जो दस्तखत करता है उसको ऑफिसर कहते हैं। तो आपने जिंदगी में ऑफिसर देखे होंगे, उनका कैसा एटीट्यूड होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। So be an officer before you are one. Be an officer before you are one. तो एक ऑफिसर बनने से पहले ऑफिसर बन जाओ, उनकी आदत अपनाओ। Habits are so important. Habits are again part of your personality. Personality is the sum total of your internal and external characteristics which are expressed in the form of behavior, character and हैबिट्स। तो आपकी जो हैबिट्स है वो आपकी पर्सनालिटी बनाती है, वो आपका माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, आपकी आदत क्या क्या है। तो इफ यू कैन डेवलप सम गुड हैबिट्स, देन ऑटोमेटिकली योर माइंडसेट एंड योर पर्सनालिटी विल हेल्प यू। सो बी एन ऑफिसर बिफोर यू आर वन। जिन अल्फाज को मैं रिपीट करता हूं तो उसको कमेंट में लिखा करें, खुद ही मेरे कहने के बगैर। सो एक ऑफिसर क्या होता है? स्टेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके दस्तखत का कोई वैल्यू होती है, लोग उसके पीछे जाते हैं, बात करते हैं, उसकी इज्जत होती है, उसको एहतराम दिया जाता है, उसको बुलाया जाता है, मेहमान बनता है, लोग उसको सुनते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, so then you are behaving like an officer. So be an officer before you are one. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पर्सनैलिटी में, वो उनकी स्टेबिलिटी है। वो स्टेबल लोग होते हैं। दे डोंट हैव विक्टिम मेंटालिटी, दे डो नॉट प्ले विक्टिम कार्ड। विक्टिम्स कंप्लेन एंड ऑफिसर्स गिव सॉल्यूशंस। जो विक्टिम मेंटेलिटी होती है कि जी ये है तो वो है, तो हालात ख़राब है तो पाकिस्तान ये है तो वो है, ठीक है। अब वो किसी मिनिस्टर ने कोई लेटर लिखा है, सजेस्ट किया है कि जी जो ज़ख्मी ऑफिसर होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप लगाए या किसी और जगह पे लगाए, सेक्शन ऑफिसर लगाए। तो वो जी देखो फौजी ये करते हैं वो करते हैं, फौजी का 10% कोटा है, तो यार 90% तो है आपके पास ना, तो 90% के लिए कंपीट करो। लेकिन उनको वो चीज़ नज़र आती है कि जी कौन सी फौजी ने किसको कहा है, किस टीचर को कहा है कि तुम सही टीचिंग ना करो, किस डॉक्टर को कहा है कि तुम सही डॉक्टरी ना करो, किस एग्रीकल्चरिस्ट को कहा है कि तुम सही एग्रीकल्चर ना करो, किस दुकानदार को कहा है कि तुम सही दुकानदारी ना करो, किस फौजी ने किसको कहा है। लेकिन सारा मलबा हम फौज पे डालते हैं, अपने आप को मुबर्रा करने के लिए, अपने आप को आज़ादी देने के लिए। तो इसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, प्लेइंग विक्टिम कार्ड, ठीक है। विक्टिम का कार्ड प्ले करना, अपनी कमजोरी जो है वो दूसरे लोगों पे डालना। आपका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम तबाह है, तो क्या फौजियों ने तबाह किया है? आपके सरकारी दफ्तर सारे तबाह है, तो क्या फौजियों ने तबाह किया है? फौजी अगर प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने कैंटोनमेंट को खूबसूरत बनाते हैं, तो अब अपनी जो कैंटोनमेंट का बाहर इलाका है उसको खूबसूरत बनाओ। अगर वो अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करते हैं,
वो अपने लोगों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, उनके लिए DHA चलाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, फौजी सीमेंट लगाते हैं। तो आप लगाओ, आपको किसने मना किया है? आपको किसी ने मना किया है? तो नहीं जी, वो तो फौजी सब कुछ करते हैं। अब बजट में भी उनका एक पार्ट है, लेकिन वो बजट, सारा बजट वो नहीं खाते। ज़्यादातर बजट पाकिस्तान का कर्जों में चला जाता है। तो ऑल दिस इज विक्टिम मेंटालिटी, और इसमें ज़्यादा मिलियंस ऑफ लोग इसका शिकार होते हैं। अपने आप को नहीं देखते, दूसरों पे जो है वो उंगली उठाते हैं। सो दिस इज माइंड सेट, that how you become optimist, how you become hopeful, how you become self confident, कि यार इन फौजों के बावजूद, इस करप्ट सिस्टम के बावजूद, इस गन के बावजूद, फिर भी बड़े बड़े अच्छे लोग अच्छी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं भी उनकी तरह बन सकता हूं। मैं क्यों प्रोपेगेंडा करूं, क्यों जो है लोगों के खिलाफ बोलूं? सो दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ CSS ऑफिसर और एनी PMS ऑफिसर, और जो भी ऑफिसर की मेंटालिटी है। तो माइंडसेट पे और पर्सनालिटी पे मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसको पढ़े। आखिर में जो चीज़ है, दैट इज TEF, टाइम, एनर्जी एंड फोकस। यू हैव टू मैनेज योर टाइम, एनर्जी एंड फोकस। अगर आपके टाइम मैनेज नहीं है, आपकी एनर्जी ज़ाय हो रही है, और आपका जो है वो क्या वो जो है अपना फोकस आपका ज़ाया हो रहा है, तो फिर आप बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? आप सारा दिन जो है 5 घंटे आप फेसबुक पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग जो है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो उसमें फिर ये एसे राइटिंग और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर ये नहीं बैठेंगे। आप सारे दिन गप्पे लगाते हैं, गीबतें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, अपने हमसायों के खिलाफ बातें करते हैं, फिर आप किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। सो यू हैव टू सेव योर फोकस। आपके पास कुछ करने का नहीं होता, सो जाओ। ठीक है? वॉक करो, कि पहाड़ पे चढ़ो, किसी पार्क में जाओ, लेकिन अपने जो है फोकस को ज़ाहिर न करें, अपने एनर्जी को ज़ाहिर न करें। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। आपका एनर्जी नहीं है तो फिर आप वर्क कैसे करोगे? एक थका हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आराम कर सकता है, या उसको आराम करना चाहिए। स्लीप जो है, अपनी नींद बड़ी ज़रूरी है। सो दीज आर ऑल डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनालिटी, माइंडसेट एंड टाइम, एनर्जी एंड फोकस मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैंने आपको टिप्स दी है, नोट्स में उसको पढ़े सोने से पहले। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने आपको नोट्स में एक चीज दिया है, 888 फार्मूला। 888 फार्मूला ये है कि 8 घंटे नींद, 8 घंटे काम, 8 घंटे अपनी ज़ात पे लगाना। ज़ात ये है कि आपने खाना खाना है, आपने वॉशरूम जाना है, आपने नहाना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं, थोड़ा बहुत किसी के साथ जो है वो बातचीत करनी है, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो ये आपका ज़ाती काम है। इसके लिए 8 घंटे, 8 घंटे नींद, 8 घंटे स्टडी। अगर आपका कोई जॉब है तो फिर आपको ज़ाती कामों में से टाइम निकालना पड़ेगा, स्टडी के लिए और जॉब के लिए। और नींद में भी 1 घंटा आप जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये 888 फार्मूला है। एक आम इंसान के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। 8 घंटे नींद, 8 घंटे ज़ाती काम, 8 घंटे काम। और वो काम, स्टूडेंट का काम स्टडी है तो स्टडी करे 8 घंटे। और जो दूसरा मैंने आपको नोट्स में दिया है वो है 3 days 1 सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन पढ़ा करें। वहाँ मैंने टाइम टेबल का एक सैंपल भी दिया है कि सुबह क्या करे, आफ्टरनून क्या करे, शाम को क्या करे। तो वो आपने 3 दिन उसको रिपीट करना है। ठीक है? आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मसलन पाकिस्तान अफेयर्स उठाया, तो इसको 3 दिन पढ़े, एक दिन न पढ़े। और एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स में न पढ़े, क्योंकि वो मैनेजेबल नहीं होता।
एक दिन में कुछ भी हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई मेहमान आ सकते हैं, तो आपके पास कल का दिन होगा, परसों का दिन होगा। आप अगर 3 दिन ही ज़ाय करते हैं और 3 दिन में एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता, तो फिर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो 3 दिन में कम से कम आपको 2 दिन तो मिलने चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। तो 36 दिन बाद आपका 12×3=36, 12 सब्जेक्ट्स जो है 3-3 दिन हम पढ़ेंगे। तो 36 दिन के बाद फिर पहला सब्जेक्ट आता है, तो उसको आप दोबारा वहां से शुरू करिए जहां आपने उसको छोड़ा है। ओके इमरान खान, थैंक यू फॉर योर थैंक यू। एंड आल्सो प्लीज रीड द नोट्स। नोट्स को पढ़ा करें, वो आपके पास एक कांस्टेंट चीज आती है। क्लास हमारे सिर्फ डिस्कशन के लिए है और थोड़ा सा उसको टच करना है। क्लास में आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं उसको आंसर करता हूँ। बाकी तो नोट्स में सारी चीज़ों की जवाब आपको अवेलेबल है। यू जस्ट गो गिव इट अ रीड। आपके 10-15 मिनट्स लगेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर जवाब मिलेंगे। आप उसको किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है, इसको यहाँ से कॉपी करके ना अपने किसी वर्ड फॉर्मेट में डालें हर एक सब्जेक्ट के, और फिर उसको प्रिंट भी करें, और प्रिंट करके उसको खूबसूरत डिज़ाइनिंग करके फिर उसको आप प्रिंट में भी पढ़ सकते हैं। So all the best. This was my last lecture on introductory sides of CSS. CSS के स्टार्ट लेने के लिए ये लेक्चर जो है इस ग्रुप सेफ 6 में, ये आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट मंथ फिर हम नॉलेज पे जाएंगे, कि भाई हम नॉलेज ले ले, स्किल्स ले ले, साथ साथ LPCS में थोड़ा बहुत एटीट्यूड पे भी बात होगी। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।